Dear students, I am now to start the topic depreciation in income tax. So, in previous we had discussed depreciation in class second years in accounting, but in income tax the depreciation is already separate. So, but slightly separate. In depreciation, you would know it is derived from the Latin word depretium. Now it is changed into depreciation, which is called the living word. All Latin words are the dead language, so it is changed into the depreciation. So if we derive the depretium, D means diminishing, pretium means value of an asset. So the combination of depreciation we mean gradually diminishing of a fixed asset is called depreciation. So it is clear that the depreciation in the sense we mean the asset which is gradually diminished except a land. So in accounting you have known the treatment of depreciation. There are various treatments and there are various methods. Say for example, straight line method, diminishing balance method, sum of digits method, annuity method, sinking fund method, LIC fund method, insurance policy method, and etc. But in income tax, depreciation is the most important part, in which cases depreciation is claimable and in which cases the depreciation is admissible. It is the most important part. But depreciation at first when we mean diminution or decrease in the value of assets due to passage of time, depletion, uses of assets, obsolescence and etc. यही जो कारण जो डिप्रिसिएशन सब होता है तुम पूर्व जाच। तेणु आज एवं जो डिप्रिसिएशन कथा आम डिस्कसन करवा जो इनकम टैक्स डिप्रिसिएशन रही, तेणु आम अकाउंटिंग जो प्रकार ट्रिटमेंट करते किंतु इनकम टैक्स रे से भाया ट्रिटमेंट तार कि ना। तेणु डिप्रिसिएशन आम जो आम कैलकुलेशन करवा ए विषय नॉलेज क्रिएट करवा एट फास्ट आमको प्रथम केतरा सब पॉइंट गुड़िक भल कि मन रखा दरकार अच्छी एवं से पॉइंट गुड़ी को बेस करी आम डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कर। तेणु कथाटा हूँ जे ये जो डेप्रिसिएशन कथा कहे इट इज जनरली इन इनकम टैक्स calculated on WDV, which is called a written down value method and a straight line method. तो आम इनकम टैक्स रे डेप्रिसिएशन टाको आम दुईटी उपाय कैलकुलेशन करबा WDV आउटा होची स्ट्रेट लाइन मेथड।
तेणु आज आम यही टैक्स रे किसी थियोरिटिकली ऊपर बेस करके आम जानिबा थियोरिटिकली गेन कले आम ऑटोमेटिकली निश्चित भाव तार जो प्रॉब्लम गुड़िक आसो we must do it and sort out these problems if any questions arise in depreciation very simple है जीवन तेणु मु यही डेप्रिसिएशन को तीन पार्ट कर देछि प्रथम पार्ट को आम जो पार्ट कर देखा से पार्ट में थियोरिटिकली को बेस कर डेप्रिसिएशन को डिस्कशन करवा ताले निश्चित भाव में आमर किसी फॉर द फ्यूचर आ किसी असुविधा हेनी वी मस्ट डू इट तेणु कथा हूँ जे आम जो थियोरिटिकल पार्ट करवा से थियोरिटिकल पार्ट उपर आमर किसी नॉलेज क्रिएट करने दरकार अच्छी प्रथम हूँ जे डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करवा तेणु तार कंडीशन रहा दरकार जो कंडीशन फॉर क्लेमिंग ऑफ डेप्रिसिएशन फास्ट कंडीशन आ भितर कौन कौन पॉइंट सब रोचे या भल भाव जानवा दरकार अच्छी तापर होती जनरल प्रिंसिपल रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेशन करा तार जो प्रिंसिपल गुड़ सब रहा दरकार अच्छी से गुड़ तुम भल भाव जानवा दरकार अच्छी तापर होती आम कैलकुलेशन करवा जे एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी तापर होती आम डिस्कशन करिया ब्लॉक एसेट्स ये जो बेसिक पॉइंट्स आई हैव गिवन यू तेणु ये बेसिक पॉइंट्स उपर जदि आम नॉलेज क्रिएट करवा जदि फंडामेंटली क्लियर होगा that this chapter will be so easy and very simple. So today I am now to discuss the condition for claiming depreciation. ताले को कंडीशन थिले डेप्रिसिएशन क्लेम करा जाय परबो व्हाट आर द कंडीशंस सो बेसिकली तो फोर बेसिक पॉइंट्स the depreciation can be claimed. First point was कौन ना first point होची the asset must be owned by the assessee wholly or partly. Assessee कौन? What is assessee? ना according to Income Tax Act Section 2 subparagraph 7 defines assessee means a person who is liable to pay the tax of his own or from others. He is said to be assessee. तेणु इनकम टैक्स एक्ट अनुसार सेक्शन 2 सबपैराग्राफ 7 से कहूँ assessee is a person who is liable to pay the tax of his own ता निजर देबो कि बा अन्य कलेक्शन आनी कि पेमेंट करे तर such person will be treated as a assessee. तेणु से कहूँ the asset must be owned by the assessee wholly or partly. तेणु जो assessee जो एसेट को आनी सी तार निजस्व हिसाब से फुली व्यवहार करि पारे कि पार्टली व्यवहार करि पारे तार से केस रे द डेप्रिसिएशन कैन बी क्लेम्ड डेप्रिसिएशन क्लेम करे फर्स्ट केस. द सेकंड केस द एसेट मस्ट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. द एसेट मस्ट बी यूज्ड तार जो एसेटा यूज करा जाउथो बिजनेस पर्पस हो कि कौन सी प्रोफेशनल केस रे एसेट यूज करा जाउथो तार से केस रे डेप्रिसिएशन क्लेमेबल है. फर्स्ट केस बुझियला. सेकंड केस बुझियला. सेकंड केस तो यदि बिजनेस पर्पस हो कि प्रोफेशनल केस. थर्ड केस द एसेट्स मस्ट हैव बीन यूज्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर.
जो एसेट्स यूज करथबो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वर्ष पूर्व वर्ष बट नॉट करंट ईयर बर्तमान आम एसेट यूज करछे ताले से केस रे डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन होबनी तेणु से कहूँ द एसेट मस्ट हैव बीन यूज्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर पूर्व वर्ष से एसेटा यूज करा जाइथिबो फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन तो से केस रे डेप्रिसिएशन क्लेम करिबा। फोर्थ केस डेप्रिसिएशन इज क्लेमेबल बोथ tangible asset and intangible assets हमें प्रीवियस क्लास जानते tangible assets of the depreciation calculation करिबो intangible assets of the depreciation calculation करिबो सेमति मतलब टैक्स मध्ये depreciation can be claimable both tangible assets and intangible assets so they are the 4 points तेणु ये 4 पॉइंट्स गुड को आम एट फास्ट वी फील इट प्रति जाना दरकार अच्छे क्या स्टेप बाय स्टेप जदि आम भल कि अंडरस्टैंडिंग पावर आसो आमर निश्चित भाव में आम ये डेप्रिसिएशन को आम इजिली सर्ट आउट करते very easy है so we can easily sort out so I have discussed in the condition for claiming depreciation then we go on the general principle for calculation of depreciation जेतेबेले आमे depreciation calculation करबा तेणु आमको केतटा जनरल प्रिंसिपल गुड़िक आमको मन रखा पड़ो एट फास्ट वी हैव टू नो अबाउट द सर्टन प्रिंसिपल्स और सर्टन जनरल प्रिंसिपल्स इन व्हिच केस द डेप्रिसिएशन कैन बी कैलकुलेटेड तो फर्स्ट केस ऑफ प्रिंसिपल depreciation is allowed on the basis of a WDV method. First lekho. Depreciation is allowed on the basis of a WDV method. Depreciation टा टैक्स रे WDV मेथड रे प्रथमे अलाउ करा जाय फर्स्ट केस सेकंड के जे however an undertaking engaged in generation or distribution of power may claim depreciation on the basis of a state line method. First case होची depreciation generally will be calculated on the basis of a WDV method. However, engaged in generation or distribution of power may claim depreciation on basis of a state line method. ताले से स्टेट लाइन मेथड जदि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और हाउएवर एन अंडरटेकिंग एंगेज्ड इन जनरेशन जदि गोटे अंडरटेकिंग गोटे स्पेशल जनरेशन अच्छी कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था कराई से केस WDV मेथड सब्स्टिट्यूट प्रति बदल स्टेट लाइन मेथड will be applicable. The first case. Second case. Depreciation is allowed on block assets, not an individual. Depreciation is allowed on block assets, not an individual. Block assets को कौन बुझे? Block assets अर्थ होची individual asset को बा गोटे ब्लॉक रे जिते प्रकार एसेट्स गुड अछि
से आसेट्स को बा से ग्रुप रो से यूनिट रे जिते सब आसेट्स रही तारा से आसेट्स गुड़िक को आम ब्लॉक आसेट्स कहवा तेणु ब्लॉक आसेट्स रही ब्लॉक आसेट्स 1 ब्लॉक आसेट्स 2 ब्लॉक आसेट्स 3 4 5 6 7 अप टू 17 पर्यंत ब्लॉक आसेट्स गुड़िक रही तेणु ब्लॉक आसेट्स को बेस करी धर ब्लॉक आसेट्स आम कथा जब कहवा जो फास्ट केस फिक्स आसेट फर्निचर एंड फिटिंग्स जदि से फर्निचर फिटिंग्स जदि यही क्षेत्र में यूज करा से ब्लॉक आसेट्स गुड़े नेम करा सेमती ब्लॉक आसेट्स को जदि बिजनेस क्षेत्र में यूज करा कि ऑफिशियल यूज करा तार सी हूँ एक प्रकार ब्लॉक आसेट्स तापर केते डेप्रिसिएशन क्लेमेबल हो पारो सेटा बेस करा तेणु जेन्युइन कथा कहूँ जे डेप्रिसिएशन साधारणतः ब्लॉक आसेट्स उपरे कैलकुलेशन करा जाई परिवो बट नॉट एन इंडिविजुअल सेकंड केस देन थर्ड केस it is to be calculated at the rates prescribed by the income tax act as per the income tax act जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करा जिवो जो ब्लॉक एसेट्स ऊपर कैलकुलेशन करा जाय परिवो तार सेही ब्लॉक एसेट्स को प्रेस्क्राइब इनकम टैक्स एक्ट अनुसार ब्लॉक एसेट्स 5% इनकम टैक्स एक्ट प्रेस्क्राइब करछि से 5% कैलकुलेशन करी सेमती कापर 10% कैलकुलेशन हो कापर 20% कैलकुलेशन हो जोटा इनकम टैक्स एक्ट अनुसार जो परसेंटेज गुलो रखा जाइए तार से टैक्स अनुसार बा से इनकम टैक्स अनुसार हमको से ब्लॉक एसेट्स ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करा जाय परिवो अदरवाइज से ब्लॉक एसेट्स को केतो दे देथो जेमति हमें सेकेंड कोर्स करथले जो डेप्रिसिएशन इज अलाउड 15% और 10% और 20% दिन करा जाय सेमति दे दिथो अदरवाइज यदि दे नथो ताला हमें एट फर्स्ट आम जानवा दरकार जे से को ब्लॉक एसेट्स जाउची ब्लॉक एसेट्स 1 जाउची कि 2 रे जाउची कि 3 रे जाउची से अनुसार मत इनकम टैक्स अनुसार जो डेप्रिसिएशन ट्रीटमेंट कराई छै कैलकुलेशन कराई छै तारी पर बेस करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कराई दैट इज द सेकंड प्रिंसिपल थर्ड प्रिंसिपल देन फोर्थ प्रिंसिपल depreciation is computed on WDV of block assets तेणु depreciation is calculated on WDV on block assets उपरे depreciation calculation कर जाय परबो एवं on the last day of the previous year जो WDV मेथड depreciation calculation करा जिवो से previous year रो को निया जाई हिसाब करा so depreciation is computed on WDV of the block assets if asset is acquired and put to use during the previous year तो previous year जो करा जाई थी तारीख पर बेस कराई कि depreciation calculation it is the fourth principle then fifth principle if an asset is acquired and put to use during the previous year so depreciation calculated %, if the asset is less than 180 days during the previous year. But if an asset is acquired and owned by the assessee during the previous year, if asset is used and put to use less than 180 days, previous year ठार 180 days कम थिले, तलो in such case depreciation is calculated 50% of normal rate. तार से जितनी परसेंटेज कहि तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कराबे तार ऊपर से डेप्रिसिएशन रो 50% कैलकुलेशन करा
थोड़ा डेप्रिसिएशन होइछि 15% ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 15% होइछि तो जेहेतु 180 डेज कवर करिनी से वर्ष जो एसेट आम किनिचे से एसेट जेहेतु 180 डेज कवर करिनी ताले यदि से ब्लॉक एसेट्स आर 15% हेतो ताले तार 15% रो 50% डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन सेमती इफ एन एसेट इज एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज preceding during the previous year then the next year asset is acquired less than the 180 days. So in such case full depreciation will be calculated. Karena a depreciation preceding the previous year सेटा only थिला previous year थिला से previous year रो preceding year यदि से एसेट पुट टू यूज होइतबो एंड एक्वायर्ड बाय द एसेट हेतिबो एवं पूर्ण परवर्ती यदि 180 डेज रु कम हेतो त से क्षेत्र रे फुल डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कराइबो इना तो बेसिक पॉइंट्स देन if WD method is reduced to 0 if WDV method is reduced to 0 so in such case no depreciation will be calculated. से कहूँ जदि WDV यदि reduced to 0 है if WDV is reduced to 0 in such case no depreciation is calculated. It is the basic principle by general principle of this asset. Then in case of a co-ownership, so in case of a co-ownership is allowable if a block asset in case of a co-ownership यदि co-ownership हेतिबो in case of co-ownership is allowable in the ratio of their ownership co-ownership case रे तारे ओनरशिप और को-ओनरशिप रो रेशियो अनुसार डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड. इट द बेसिक पॉइंट्स. So the general principles I have discussed for calculation of depreciation. सो मु तो बर्तमान यही केस गुड सब डिस्कशन करते फास्ट होची डेप्रिसिएशन होची जे कंडीशन फॉर क्लेमेबल डेप्रिसिएशन तारो जनरल प्रिंसिपल 5-7 घंटे डिस्कशन करली अल्प अल्प आम डिस्कशन करवा एगुड़ी भल भाव मन रखा दरकार अच्छी मात्र वी हैव टू कवर द 3 स्कूल्स. आज जो स्कूल रे डिस्कशन कले नेक्स्ट क्लास रे हम जो स्कूल रे डिस्कशन करा नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करा तापर हम प्रॉब्लम को जीवा तो प्रॉब्लम को जी वेरी सिंपल एंड इजी. तेणु एगुड़ा सब आम वी हैव डिस्कस्ड द शॉर्ट टर्म जनरल प्रिंसिपल ऑफ डेप्रिसिएशन. देन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस्ड the additional depreciation by calculation of depreciation or additional depreciation calculated for plant and machinery. It is discussion kira. Then go on certain block assets discussion करसला problem को जिबा automatically chapter will be over. Thanks to all.